اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 4 ہے اور ترجمہ ہے سورہ البقرہ کا آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، مقطعات قطع سے ہے اور ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکا کا مطلب لفظی ترجمہ وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ کریں گے کیوں ایسا ہے کہ یہ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، تو جب اس کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کو، حالانکہ ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن، مگر ہم یہ کتاب کے بجائے وہ کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذالکا کا ترجمہ ہم کریں گے یہ، ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کا لفظ کیا استعمال کریں گے، وہ ذالکا۔ الکتابو، یہاں پر جو ال ہے نا، یہ کتاب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ الکتاب قرآن کا ایک نام بھی ہے، تو یہاں ال کا ترجمہ الگ سے نہیں ہے۔ کتابو، الکتابو کتاب ہے، ٹھیک ہے، کتاب ہے۔ لا ریبہ، لفظ لا جو ہے نا، لفظ لا اس کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر نہیں، لیکن کیسی نہیں، بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل نفی کیوں ہے؟ لا ریبہ، لا معنی نہیں، ریبہ کوئی شک۔ اب دیکھیں ریبہ، لا کے بعد والا اسم پر اگر اس طرح سے فتح آتا ہے نا، زبر کو فتح کہتے ہیں عربی میں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل نفی، ٹھیک ہے، کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ تو لا ریبہ، تو ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، ٹھیک ہے، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی کا معنی کیوں ہم نے کیا؟ اس لیے کہ لا جو ہے یہ ایسا لا ہے کہ یہ مکمل نفی کرتا ہے، اس لیے، ٹھیک ہے۔ لا ریبہ، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی، یہ کتنے الفاظ ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہے یہ فی ہی ایک لفظ ہے یا دو ہے؟ 2 لفظ ہے، ماشاءاللہ۔ ایک فی ہے اور ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں نا گھر میں، فل بیتی گھر میں، فل مسجدی مسجد میں، تو یہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، کسی چیز کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہی جو ہے، ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے۔ پروناؤن کیا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ انگلش میں ہم نے گرامر میں پروناؤنس پڑھے نا، عربی میں اس کو ضمیر بولتے ہیں، ضمیر۔ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اگر میں کہتی ہوں کہ زید آیا، پھر میں کہتی ہوں زید اس نے کھانا کھایا، اب میں نے زید نے کھانا کھایا کہنے کے بجائے میں نے کہا اس نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ہی جو ہے اس کا معنی ہے ہی، اس نے، عربی اردو میں اس نے، اس، اور یہ ہی جو ہے نا، کبھی کبھی ہو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی ہی لکھا ہوتا ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ ہو یا ہی کیوں لکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اگر لہو ہوتا ہے، لام کے ساتھ آئے گا تو ہو لکھیں گے، فی کے ساتھ آئے گا تو ہی، تو یہ صرف پڑھنے کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان کی زبان پر جو ایزی طریقے سے پڑھنا ہے، اس لحاظ سے کبھی ہو لکھا ہوا ہوگا کبھی ہی، لیکن ہی کا ترجمہ کیا ہے؟ اس، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہی اس میں، ٹھیک ہے، اس میں۔ ہدن، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کچھ الفاظ اسم ہوتے ہیں، کچھ فعل ہوتے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں نے کچھ پہچان بتائی تھی، تو ہدن کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، تنوین ہے اس کے اوپر، تنوین جو ہے وہ اسم کی پہچان ہے۔ ہدن، ہدن کا معنی ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں ہدایت، ہے نا، ہدایت، ہدن کا معنی ہے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ہدایت ہے۔ للمتقین، یہ کتنے الفاظ ہیں للمتقین، کتنے الفاظ ہیں؟ 2 ہیں، 2 ہیں، ٹھیک ہے، 3 نہیں ہے، 2 ہیں، کیسے؟ لام، اچھا ہاں، جنہوں نے 3 کہا شاید انہوں نے ال کو بھی ایک اسم کہا، ٹھیک ہے نا، ال کو بھی ایک لفظ کہا، رائٹ، ٹھیک ہے۔
माशाल्लाह, जिन्होंने 3 कहा उन्होंने भी सही कहा, लेकिन देखें अल जो है ना, सही बात है, वो अलग एक हरफ है, लेकिन अगर समटाइम्स जिस तरह से अल किताब था तो हमने अल को नहीं काउंट किया था, ठीक है, तो कभी कभी अल को काउंट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर लिल मुत्तकीन, नामज़ेर ली का मतलब होता है वास्ते, लिए, ठीक है, नामज़ेर ली का मतलब वास्ते या लिए। अल मुत्तकीन, तो यहाँ पर अल मुत्तकीन, अल का मानिया जो है, और मुत्तकीन मुत्तकी है, ठीक है, और लामजली वास्ते। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है वास्ते उनके जो मुत्तकी हैं। अल्लज़ीना, लास्ट टाइम हमने अल्लज़ीना पढ़ा था, क्या अल्लज़ीना हमने पढ़ा है पहले? जी बिल्कुल पढ़ा है। इसका क्या मतलब है? वो लोग जो, ये वाहिद है या जमा है? अल्लज़ीना जमा है, माशाल्लाह, इसलिए कि यहाँ पर या नून है तो ये जमा है। अल्लज़ीना वो लोग, ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना, युमिनूना, ये अब मुझे बताएं इसका तर्जुमा है जो ईमान लाते हैं। ये इसम लगता है आपको या फेल? ये फेल है, ठीक है, फेल होता है वर्ड, वर्ड, ठीक है, युमिनूना। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। अब देखिए एक पहचान फेल की क्या होती है कि कभी ये या से शुरू होता है तो वो फेल होता है, ठीक है, और या का तर्जुमा वो करते हैं, वो जो ईमान लाते हैं, वो ईमान लाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ ता होती ना तो मीनूना, तो तर्जुमा क्या हो जाता? तुम ईमान लाते हो, ठीक है, यहाँ पर ता हो जाती या के बजाय तो तर्जुमा क्या बन जाता? तुम ईमान लाते हो, लेकिन यहाँ पर या है तो वो ईमान लाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ वावनुन है ना तो ये जमा है, अगर यहाँ वावनुन ना होता तो ये वाहिद होता, ठीक है। वावनुन और यानून जो है वो आखिर में अक्सर आते हैं, वो जमात के लिए आते हैं। तो युमिनूना वो ईमान लाते हैं, अगर तुमिनूना होता तो क्या होता? तर्जुमा मुझे बताएं, तुमिनूना होता तो क्या होता? तुम ईमान लाते हो। अगर यहाँ ता या के बजाय नून होता, नुमिनु, नुमिनु होता तो फिर हम ईमान लाए, ठीक है, माशाल्लाह, हम ईमान लाए। यहाँ पर युमिनुना वो ईमान लाते हैं या जो ईमान लाते हैं की बात है। अच्छा, बिल गैबी, बिल गैबी, बा का क्या मतलब होता है? हमने बिस्मिल्लाह में पढ़ा था, बिल गैबी, बा का मतलब होता है साथ, माशाल्लाह। अल गायब, हम उर्दू में गायब बोलते हैं ना, तो ये वही मानी में, ठीक है, गायब पर ईमान लाते हैं, जो चीज़ें नज़र नहीं आती हमें, अननोन चीज़ें, उनको गायब कहते हैं, तो उर्दू में भी सही सेम है वर्ड, ठीक है। अच्छा, युकीमूना, वाह जो होता है इसके कुछ और मानी भी हैं, लेकिन यहाँ पर वाह का मतलब क्या है? और, ठीक है, और वल्लाही जब बोलते हैं तो तर्जुमा क्या होता है? कसम अल्लाह की, तो वो वाव कसम के लिए होता है, और वाव कभी कभी हाल बताने के लिए भी आता है, तो वो इंशाअल्लाह जब जब आएगा मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर वाव जो है मोस्टली वाव का तर्जुमा और होगा, ठीक है। और युकीमूना, युकीमूना हम उर्दू में बोलते हैं ना, कायम करना किसी चीज को, हम बोलते हैं ना कायम करना, ये सेम है, युकीमूना सेम है। माशाल्लाह सलमा भी मौजूद है आज। अच्छा, अगर यहाँ पर यू या को हटा के ता कर दे तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? तुकीमूना होता तो क्या होता तर्जुमा? तुम कायम करते हो। अगर यहाँ पर नून लगा दे नुकीमू तो फिर क्या बनता? हम, माशाल्लाह। और देखिए अगर हम हमजा लगाए ना, हमजा यहाँ पर लगा दे तो उकीमू, उकीमू फिर मैं आ जाएगा, ठीक है, मैं कायम करता हूँ। तो हमजा से मैं, नून से हम, ता से तुम, और या से वो, ठीक है, युकीमूना, ये वाहिद है या जमा है? युकीमूना जमा है, कैसे जमा है कि इसमें वाव नून है, तो वो कायम करते हैं, वो कायम करते हैं।
उकीमूना, हमजा से उकीमू, उकीमू हमजा आ गया तो मैं कायम करता हूँ, नून आ गया तो हम कायम करते हैं, ता आ गया तो तुम कायम करते हो, या आया तो वो कायम करता है, ठीक है। अच्छा, और जमा है इसलिए कि वाव नून है, ठीक है। अस्सलाता, अस्सलाता, सलात हम उर्दू में बोलते हैं ना, तो ये तो आसान है, अस्सलात नमाज, ठीक है। अस्सलाता नमाज, असल में सलात सिर्फ सलात होता है ना, तो कभी कभी सलात का मानी कुरान में दुआ भी आता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं दरूद शरीफ में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो हम उस वक्त दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन रहमत की दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन अस्सलात अल आ गया और कुरान में अक्सर अस्सलात ही आया है, तो ये नमाज है, ठीक है। जिस तरह अल किताब से मतलब कुरान है, तो ये अल सलात व का तर्जुमा हमने पढ़ लिया क्या होता है, और माशाल्लाह मिम्मा, ये कितने अल्फाज है कौन बताएगा, मिम्मा किसी को पता है, ये दो है, मिन, एक मिन है और एक माँ है। मिन का मतलब हमने पढ़ा है कहीं से, मिन हमने पढ़ा है पहले, मिन से, माशाल्लाह। मिनश मिनश शैतान रजीम पढ़ते हैं ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, तो मिन का मतलब से और माँ का मतलब क्या होता है, जो, ठीक है, जो, मिम्मा इसमें से जो, रज़क़ना हुम, रज़क़ना हुम, ये कितने अल्फाज दिख रहे हैं आपको, रज़क़ना हुम, कितने अल्फाज है, तीन है ना। देखिए रज़क़, रज़क़ा का मतलब होता है, हम उर्दू में बोलते हैं ना रिस्क, रिस्क बोलते हैं ना, तो ये फेल है, रज़क़ा मतलब रिस्क दिया, ठीक है, रिस्क दिया, रज़क़ा रिस्क दिया, ना, ना का मतलब क्या क्या होता है, एहदिना, हमने पढ़ा था ना एहदिना, तो हमने रिस्क दिया हमने, ठीक है, रिस्क दिया हमने, रज़क़ना रिस्क दिया हमने, हम, उनका क्या मतलब होता है, हम का मतलब उनको, हम जो है ये ही की जमा है, ठीक है, ही वाहिद है और हम जमा है, रज़क़ना हम, रिज़्क दिया हमने उनको, ठीक है। अब देखिए युनफिकूना, युनफिकूना हम कर नफ़क़ा हम उर्दू में भी बोलते हैं, ठीक है, युनफिकूना हम उर्दू में बोलते हैं, नान नफ़क़ा किसी को याद है, निफाक फी सबीलिल्लाह किसी ने सुना है, निफाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करना, और नान नफ़क़ा हम बोलते हैं जो खर्चा दिया जाता है उसको, ठीक है, तो खर्च करना हम उर्दू में बोलते हैं, तो ये इसी से है, नून फा काफ, नफ़क़ जो है ये इसी से है। अच्छा, अब या यहाँ पर है तो तर्जुमा क्या हो जाएगा, वो खर्च करते हैं। अब तर्जुमा जमा का क्यों है यहाँ पर, युनफिकूना, क्यों जमा का तर्जुमा किया मैंने, वो खर्च करते हैं इसलिए कि वावुन है, वल्लज़ीना वाव हमने पहले से पढ़ लिया, वाव का तर्जुमा, और हाँ माशाल्लाह दो स्पेन, वाव और अल्लज़ीना हमने पढ़ लिया, दोबारा आ गया, देखिए अल्लज़ीना ऑलरेडी कितनी बार आ गया ना, वो लोग जो युमिनूना दोबारा आ गया, वो ईमान लाते हैं, बीमा, बीमा, बी साथ, माँ, माँ का क्या तर्जुमा होता है, अभी हमने पढ़ा था मिम माँ में जो, ठीक है, साथ इसके जो, उनजिला, उनजिला हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, उनजिला क्या बोलते हैं उर्दू में, इसका मिलते जुलता लफ्ज, नाजिल हुआ या अंजाल या शान नजूल बोलते हैं ना, हाँ माशाल्लाह, ये उसी से है, उनजिला नाजिल किया गया, ठीक है, उनजिला नाजिल किया गया, इलाई का, ये कितने अल्फाज है, इलाई का दो है, माशाल्लाह दो है,
इला और का। इला का मतलब होता है तरफ, इला का मतलब, देखिए उर्दू में भी इला हम इसी मानी में बोलते हैं, मुरसल इलैहि बोलते हैं, अद्दाई इलल खैर बोलते हैं, ठीक है। इला हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तरफ। और का मतलब होता है आपके, इलैहि का तरफ आपके, ठीक है। अच्छा, वह फिर से आ गया, माँ फिर से आ गया, उनजिला फिर से आ गया, ठीक है। मिन फिर से आ गया। ये सारे अल्फाज हम पढ़ चुके हैं। क़ब्ली का, ये कितने अल्फाज हैं? क़ब्ली का 2, माशाल्लाह। क़ब्ल का मतलब उर्दू में भी हम बोलते हैं क़ब्ल अज़ वक़्त, क्या मतलब होता है? बिफोर, माशाल्लाह। तो क़ब्ली का आपसे पहले, और का हम पहले पढ़ चुके हैं, क़ब्ली का आपसे पहले। वह और बिल आखिरती, यहाँ पर इसका आसान है तर्जुमा, कितने अल्फाज है? बा, साथ। आखिरा हम उर्दू में भी जानते हैं ना, आखिरा हम किसको बोलते हैं? आखिरत, क़यामत, ठीक है। अच्छा, एंडिंग, आखिर एंडिंग बोलते हैं ना उर्दू में, माशाल्लाह, ठीक है। हम फिर से आ गया, वो। अल आखिरा, हाँ, अगर हम अल को भी काउंट करें तो ये 3 होंगे, लेकिन चूंकि अल आखिरा क़यामत का एक नाम है, इसलिए यहाँ हम 2 ही कहेंगे, ठीक है। बिल आखिरा, बा साथ, अल आखिरा क़यामत, ओके। तो चूंकि बाज़ औक़ात अल जो है वो उसको ख़ास नाम होता है जो इसी तरह पहचाना जाता है, तो उस वक्त हम अल को अलग से तर्जुमा नहीं करेंगे। बिल आखिरत, साथ आखिरत के। वो युक़िनूना, युक़िनूना उर्दू में हम बोलते हैं, कुछ मिलता जुलता लफ्ज हम बोलते हैं यकीन करना, माशाल्लाह, यकीन करना, सेम रूट वर्ड है ये भी। और युक़िनूना, तो यू या है तो फिर क्या तर्जुमा करेंगे? वो। और फिर वाव नून है तो क्या करेंगे? जमा का तर्जुमा करेंगे। वो यकीन रखते हैं, वो यकीन रखते हैं। उलाइका फिर से आ गया, उलाइका यही लोग, ओके, ये जमा है, यही लोग। उलाइका जो है ये जमा है, यही लोग। अला, अला फिर से आ गया, अला का क्या मतलब होता है? ऊपर। हुदन, हुदन हिदायत के हैं, यही लोग ऊपर हिदायत के हैं। युकीनूना, युकीनूना जमा है, युकीनूना वाव नून आखिर में तो ये जमा है, ठीक है। उलाए का वो लोग, तर्जुमा वो लोग होता है इसका, ठीक है। असल तर्जुमा वो लोग है। यहाँ पर याद यही लोग क्यों आया है? देखिए जिस तरह से दालिकल किताबों में हमने उल्टा तर्जुमा किया था, यहाँ क्यों किया है उल्टा तर्जुमा? कि ये अजीम लोग हैं जिनमें ये खुसूसियात है ना, कि वो नमाज पढ़ते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, ये बहुत अजीम लोग हैं, इसलिए इनको उलाई का यूज किया है, हालांकि ये हा उलाई होना चाहिए, करीब का होना चाहिए, ठीक है। तो यही लोग तर्जुमा हम क्यों कर रहे हैं? कि इसकी अजमत की वजह से, वरना ये असल में उलाई का मतलब होता है वो लोग, ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये समझ में आ गई ये बात सबको? उलाई का यही लोग, आला ऊपर, हुदन हिदायत के हैं, मिन रब्बिहिम, ये कितने अल्फाज हैं? मिन रब्बिहिम, मिन से, रब्बी हमने पहले पढ़ लिया, रब, हिम उनके, उनकी रब की तरफ से, ठीक है, अपने रब की तरफ से, माशाल्लाह। वह और उलाए का फिर से आ गया, यही लोग, यही लोग हैं, हम वो, अल मुफ्लिहून, अल मुफ्लिहून, अल यहाँ पर जो है अल खास बना रहा है, इलई मीन्स टूवर्ड्स, हाँ, हम वो, अल मुफ्लिहून, ये वाहिद है या जमा है? अल मुफ्लिहून ये जमा है, ठीक है। और यहाँ अल जो है सिर्फ खास बना रहा है, जैसे मुफ्लिह, मुफ्लिहून जो होता वो कोई भी मुफ्लिह होता, अल मुफ्लिहून
یہ وہ خاص لوگ ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں. تو یہ ال جو ہے وہ معرفہ بنا رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم الگ سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. صحیح. اوکے ماشاء اللہ، ہمارا 5 آیت پوری ہو گئی. اب ان آیت کو میں ترجمے میں اس کی تلاوت لگاتی ہوں. واٹ از دا روٹ ورڈ؟